In my writing, I use my language to create art, and in my coaching practice, I help the client to give language to their story. मुझे लगता है जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होती हैं, जो चेंजेस आ रहे होते हैं, वो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन whenever you take a piece of paper and you start writing. Was it a story you always wanted to tell, और या फिर ये इमर्ज हुई आपके पर्सनल जर्नी और आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन के बाद? If you've read Lord of the Flies, तो उसके अंदर भी ये है कि एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बट द चिल्ड्रन आर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड. वहाँ पर अपना वो एक सोशल स्ट्रक्चर बना देते हैं. ये थीम्स जो है ये कैसे स्पीक, हाउ विल दे स्पीक टू समबडी who's young? बिकॉज जो मेरे ऊपर फेज आया ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो उनके ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है, एंड दे आर वेरी ड्रिवन. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट टाइज माई वर्क एज अ कोच एंड एज एन ऑथर विद young adults today. और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लाइक एक नॉवल तो होगी, अब आगे के प्लान है? वन वर्ड दैट डिफाइंस योर करंट चैप्टर इन लाइफ. Transition. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have Samar Shabbir with us, who is a life coach. She's also an author. उनकी ज़बरदस्त किताब जो है वो आने वाली है, हम उनसे आज बात करेंगे. एंड टुडे we're going to talk about her journey of reinventing herself. जब भी कोई ख़ातून मेरी पॉडकास्ट पर आती हैं एंड शी टॉक्स अबाउट हर जर्नी, तो मुझे हमेशा बहुत सीखने को मिलता है, बिकॉज मुझे लगता है हम एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, स्पेशली वन इट्स अबाउट री इन्वेंटिंग, दैन इट बिकम्स इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स. सो आई एम रियली एक्साइटेड टुडे. थैंक यू सो मच समर फॉर कमिंग हियर. Thank you so much for having me. अच्छा समर, हम आपसे डिटेल में जाएंगे सारी बातों की, बट सबसे पहले वी वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि वेयर वर यू बॉर्न, वेयर वर यू रेज्ड, व्हाट्स योर डिग्री, और आपने इवेंचुअली ये जो प्रोफेशन है लाइफ कोचिंग का, ऑथर बनने का फ़ैसला, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ आप कैसे आए? So I am now currently a senior certified professional life coach, and I am an author. मेरी debut novel अभी it's coming out on the 11th of November. And how this journey started was, I'll be very honest, I'm not very educated. मैंने A-levels किया था, उसके बाद I got married. अच्छा. And yes, I got married very young. अच्छा, इनको मिलकर और इनसे बात करके आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एक वो जो हमें एक इम्प्रेशन होता है ना कि somebody is very educated, वो वाली चीज़ है. तो उसके बाद आफ्टर थिंग्स डिड नॉट, आई फेल्ट लाइक थिंग्स weren't वर्किंग आउट. मैंने टू कंप्लीट माई 16 years ऑफ एजुकेशन, मैंने बैचलर्स किया. अच्छा. फिर मैंने मास्टर्स किया इन इंग्लिश लिटरेचर. आफ्टर यू गॉट मैरिड? आफ्टर क्वाइट अ वाइल आफ्टर आई गॉट मैरिड. Oh. तो बट मोस्ट ऑफ व्हाट I've learned, I've been taught until recently. मैंने certification, because I got certified and I got into coaching. उसके बाद ही मेरी जर्नी शुरू हुई. When it comes to how I was raised and I was born, where I was born, I belong to a very conservative family from the north of Pakistan, KP से. And I've lived most of my life in Peshawar and Islamabad. So उसके बाद there came a point in my life where what I knew and what was supposed to happen, what I was, जो मेरी life का pattern was decided, did not work. Oh. And when the old started to fall apart, I started to realize that there are two ways to go about this. Either I could sit and let life happen to me, or I could take control of it. So I always say I could choose resignation, but I chose reinvention because मुझसे वो बस नहीं हो रहा था. तो I got into coaching, I started writing, and when I did, मतलब ये एक ऐसा event नहीं था कि I decided. वो slow and steady journey होती रही. It was accidental, something I was not pursuing actively at that time. And then I started writing because at that time I only knew two things. I could write tolerably well and I could speak tolerably well. So I started writing, and to my surprise, मेरे पास
फिर एक manuscript थी, and my friends, they encouraged me to pitch it to agents and publishers, and Oh that is how wow, it that's happened. amazing. Yes. हाँ, so आपने बताया कि मैं चूज़ कर सकती थी resignation, but I chose reinvention. I did. So can you share your turning point? कि क्या moment था where you decided कि okay, I want to rebuild myself and I'm not going to let anything break me. So, see, Iram, when things don't work out the way you think they are supposed to, you're very, मतलब you go through a process of grief. आपको गुस्सा भी चढ़ता है, आप किसी हायर पावर के साथ बार्गेन भी करते हैं, and you just want to blame. And sometimes, not necessarily मैं ये कह रही हूँ कि maybe some things जो होती हैं, they're not in your control. तो इवन इन माई कोचिंग प्रैक्टिस आई ऑलवेज मैं ये प्रोपेगेट करती हूँ कि इट इज़ वेरी ईजी, वैलिडेट कर देना अपने आप को इज़ वेरी ईजी, बट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपेंड एंड एवरीथिंग, तो बंदा एक रियलाइज कर ले कि नोबडी इज़ कमिंग एंड इट्स नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मतलब क्लीन अप द मेस या जो आगे करना है. तो द मोमेंट आई डिसाइडेड इट वाज माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कुड do something, and जब मुझे realize होने लगा कि I can actually do things, तो that is how it started. अच्छा, so अगर हम आपसे पूछें कि कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ थी जिससे आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू, जैसे अब आपने कहा कि यू नो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जो शिफ्ट है या वो जो चेंज है वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? मेरी ज़िंदगी में कुछ years थे जो कि इस तरह के थे that I did not understand, मतलब कि हो क्या रहा है, because so much was happening. My sister had passed away and मेरे family का structure जो था that was like completely falling apart. I didn't understand, my siblings couldn't understand हो क्या रहा है, and in the midst of it, in the midst of all of that, I went through a divorce. So that was, I think, the moment just that completely मेरी life change हो गई, मेरा social structure change हो गया, my standing in traditional society change हो गई, everything. But it took a while to come to terms with everything. मतलब शुरू में तो I gave myself a lot of time to deal and go with everything. I was very silent. I did not address it publicly. I kind of struggled with shame, and I had trouble speaking about it openly. But when I dealt, I now feel like it was probably one of the best things to have happened to me. Yeah. So as a single mother, अगर मैं आपसे पूछूं, single parent, Yeah. फिर उसके बाद you're an author, you're an entrepreneur, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं ये आपकी राइटिंग में कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं? And do they shape your voice or the themes you gravitate towards? Because you know जब हम like I'm not a writer but I do like journaling and writing, तो मुझे लगता है जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होती हैं, जो चेंजेस आ रहे होते हैं, वो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं on whenever you know you take a piece of paper and you start writing, you will see कि आपके किस तरह, like sometimes when I take out my old diaries and I see कि मैं कितना evolve हुई हूँ in all these years. So as an author, माशाल्लाह आप तो professionally इसको लेके चल रही हैं, तो वो कितना आपकी writing को inspire करता है? या I think a writer can only write about what they know. जिस तरीके से I love reading fantasy fiction, but I sometimes feel like fantasy I cannot execute because I'm not there yet. So in my writing I talk about the themes that I have experienced, जो कि मेरे understanding में हैं, but I speak about them in a very layered way that everybody can resonate with, ताकि अगर कोई भी पढ़े, कोई मतलब if it's a very ambitious man या a housewife, या अगर कोई young adult भी पढ़ रहा हो, they can resonate with that. And when it comes to my coaching and my parenthood, single parenthood, which has been, I consider, one of the most fulfilling experiences of my life, मुझे ये लगता है कि I always मैं यही practice करती हूँ कि I validation जो आपका experience है, that is very important to understand कि what you're experiencing is very real in your perception. Yeah. But there has to be accountability. Yeah. तो मैं अपने बच्चों को भी ये कहती होती हूँ, मतलब I practice this, all feelings are welcome but not all behaviors are welcome. Yeah. तो I think ये सारे in my coaching practice and especially in my parenthood, ये दो prevalent themes हैं. And मुझसे ये सवाल काफ़ी किया जाता है कि how do they intersect, how do both my careers overlap.
मैं हंसती होती हूँ, मैं कहती हूँ कि माई राइटिंग मेक्स द यूज़ ऑफ माई डिसफंक्शंस एंड माई डीमंस, एंड माई कोचिंग प्रैक्टिस मेक्स यूज़ ऑफ माई हीलिंग. Yeah. In my writing, I use my language to create art, and in my coaching practice, I help the client to give language to their stories. Yeah, that's beautiful. Thank you. अच्छा, also ये जो आप I just want to talk about like because I am interested in this part कि as a single mother बहुत सारे लोगों में तो ये हिम्मत ही नहीं है कि वो उस डिसीजन की तरफ आए, ठीक है. We're not talking about कि फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं है, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, वो सारी बातें तो पीछे रह जाती हैं. What I'm trying to understand here, I'm just curious about this part कि एक सिंगल मदर का हमारी सोसाइटी में जिस तरह Absolutely. अगर कोई यहाँ पर रेज हुआ है, जैसे कि आप कह रहे हो यू वर डीलिंग विद शेम, यू वर कोपिंग विद ऑल ऑफ दोज फीलिंग्स, बट यू डिसाइडेड टू आपने उससे निकल कर अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी. सो ये बहुत मुश्किल है. इस तरह अभी आप बता रही हैं, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, No, it took me a long time to deal and to get there. बट इतनी इंटरनलाइज करवाई जाती हैं बचपन से ये चीज़ें कि आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है आपकी शादी और आपका हैप्पीली मैरिड होना इतना बड़ा कोई गोल है कि लोग उस आइडेंटिटी से क्लिंग करते हैं, उससे आगे अपने आप को देख नहीं पाते. सो आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस पार्ट कि वंस यू वर आउट ऑफ दैट थिंग, तो आपने कैसे अपने आप को देखा कि आई एम मोर देन दिस वाज जस्ट वन रिलेशनशिप एंड आई एम अ लॉट मोर देन यू नो दिस वन रिलेशनशिप. Iram, to be very honest, I think as a young girl, everybody dreams of happily ever after. As did I. Matlab, this was never the part of the plan. So, it was not something I wanted myself, but when it did happen, yes, बहुत ज़्यादा outside noise था, especially being from a conservative KP की family. मुझे बहुत initially support नहीं था, even from my family. Over time, yes, they realized, but मुझे support जब नहीं था, मैंने बिल्कुल I realized that the only way to deal with it was silence. And you know, when you're silent, you deal with it with grace. आप understand करते हो अपने आप को, you try to मतलब आप you come up with a narrative in a way that empowers you rather than मतलब आपके साथ empathize करवा सकता है rather than sympathize, which is what I wanted. तो जब मुझे लोग कहते थे you're so strong, I did not like that word because strong मेरी reality में strong came off as something that I did not choose. I prefer the word courage. When it comes to parenthood, post divorce ऐसे भी नहीं हो सकता कि you just leave the child to deal with it. The child is going to be impacted. You have to rehabilitate the child, and to rehabilitate the child आप खुद थोड़े से इस जोन में होने चाहिए जब you're neutral, where आप बायस में ना जाओ, आप vendetta, revenge वाले फेज में ना जाओ. And I always think अभी तो ये आ गया है कि I always make decisions even अगर मतलब I do not, अगर लाइफ में अगर फर्ज करें there are few baskets that you can take out of. I make sure कि बच्चों की basket is not touched. I want to be a fully available parent. But when it comes to myself, I never compromise myself anymore. I don't. Even if बच्चा थोड़ा सा अगर struggle करता है, I'm all right with that. Because I feel if the parent is fine, happy, at peace, they can be a good parent. Even if it's एक parent भी अगर हो. So that is what I have experienced, which is why my experience with single parenthood has been very nice, very fulfilling. Okay. Yeah. क्योंकि लोग बहुत डरते हैं ना, and they decide to stay in abusive marriages and toxic marriages कि बच्चों का क्या हो. Yeah. So we have discussed this a lot of time in my podcast also कि staying in a toxic marriage is going to, या abusive marriage या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो ज़्यादा आपके बच्चों को डैमेज करता है. Eventually you will figure out. You will, and for me, when I, because divorce was then again the first decision I made for myself. तो मेरा ये aim था कि because of what मतलब जो हो रहा था, that is not the child's burden to carry. Parents के बीच में जो friction है, that is just not. So when I dealt with it, I made peace with my ex-husband, and we both decided to co-parent and be very present in the children's life. So अभी even as we speak, वो अपने डैडी के साथ हैं. तो मतलब because now the dynamic works, where we're both in a place where we've made peace with it, and we're both doing well. So the children now understand कि अगर situation change करती है, you have to pivot and adapt. So they've become very adaptable as well.
एंड उनके अपने डैडी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, मेरे साथ भी they're going And that's well. very brave of you, because we should not involve our egos when we we're dealing with these things with our, खासकर बच्चों के मामलात के बदला लेना या कोई इस तरह की चीज़ें कि punishment. No, absolutely. Women have, I don't know, like I've seen it a lot कि उनके अंदर फिर टेंडेंसी होती है कि punishing और फिर बच्चों से नहीं मिलने देना, या fathers भी कर रहे होते हैं. So you've looks like you've dealt with it very gracefully. I did not initially. And I'm sure my ex-husband felt the same way. But then आपने ये डिसाइड करना है कि आप जो हो गया वो तो हो गया. Out of your control. The past is something you can't control anymore. अब आगे there are children. How we मतलब sooner हम लोग अपने इस सिचुएशन के साथ डील कर लें, the better it is for them. Yeah. तो he also made peace with that. I made peace with that, and then we decide कि there's no point कि हम लोग जो हो गया बस हो गया. Now we can manage the situation as civil तरीके से, as potential मतलब as good as it get friends की तरह, so that the children can see you can have good parents, मतलब healthy sane parents working independently, Yeah. but still be a part of their lives. Yeah. That's very I think that's a very smart way to deal with it. अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी नॉवल की तरफ. तो आप हमें लेके जाएं शुरू से कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, what inspired this, and was it a story you always wanted to tell, और या फिर ये इमर्ज हुई आपके पर्सनल जर्नी और आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन के बाद? So my book The Barred Window, मैं विंडो की सिग्निफिकेंस पे भी आती हूँ. I have always been a storyteller. मतलब बचपन से I used to tell the most bizarre stories अपने cousins and friends को, and funnily enough they believed the story. तो वो मेरे अंदर जर्म पहले से था. अच्छा. But as a writer, yes, because writing a book and writing a blog या content writing, completely different things. Yeah, Very different. like I can never think about writing a book. मुझे बहुत ही amazing लगता है कि यार लोग books लिखते हैं. मुझे भी बहुत अमेजिंग लगता था उस वक्त, बट एंड बिकॉज ऑफ द वे आई वाज रेज्ड, आई हैड नो वर्क एथिक, आई हैड नो डिसिप्लिन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवर टाइम, आई लाइक आई सेड, ये राइटिंग अ बुक इज़ अ वेरी पेनफुल एंड अ वेरी पेनफुल इन द सेंस कि आपको uncomfortable करती है, because it requires things out of you that you've never done before. And I think it requires a lot of patience also. A lot of you have to be patient with yourself. And there is and आप self esteem के साथ भी struggle करते हो. My God, whatever I've written is trash. Yeah. तो उसके साथ भी आपकी struggle होती है. Who's going to read it? Like मुझे तो यही लगता रहेगा, who's going to read it? क्या मैंने गंद लिखा है, and मैंने कितनी बार I used to chuck everything aside. Oh. But and there is no end in sight, no guarantee of success. And let's not even come to the rejection letters. जब आप pitch करते हो, rejections जो वो pile up करते हैं, पहले वाले rejections पे तो मैं बेड पे फेंक के अपने आप को रोती थी. Over time वो rejections बंदा कहता है कि this is a rite of passage for all authors, no matter how big and small. So this book actually started with me trying to make sense of everything that was happening. And yes, I always wanted to tell this story set in Pakistan. I wanted to portray a part of Pakistan जो कि in its good and its bad, in a very layered way. Whatever we've experienced, especially people like me, people of privilege. So it is set in Pakistan in the times of militancy, 2007, when the socio-political unrest Pakistan में बहुत ज़्यादा हो गया था. But there are I believe there are three ways to look at it. एक from the perspective of somebody who's in the thick of it, जो actually war के repercussions सह रहा है. And then जिस तरीके से west से देखा जाता है, या somebody who's not experiencing it. And then there's another perspective जो कि एक privilege, जिस तरीके से आप और मैं, we have been witnessing it as bystanders, but we've not, मतलब हमारी lives affect होती रही हैं, सब कुछ होती रही हैं, but we weren't in the thick of it. So that is the perspective I wanted to write from. And ये why I was living in Peshawar at that time, militancy बहुत ज़्यादा थी, बहुत unrest था, it did impact me as a child. So not as a child, as a young adult, it did. So I wrote from that perspective. And then again, if you've read Lord of the Flies, तो उसके अंदर भी ये है कि एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बट द चिल्ड्रन आर स्ट्रैंडेड ऑन एन आइलैंड. वहाँ पर अपना वो एक सोशल स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो दैट इज़, even though it's not exactly like that, not exactly दूर दूर तक उस तरह नहीं है, but that's something that really मुझे बहुत अच्छा लगता था. I loved that book.
तो मेरी बुक के अंदर भी there's an internal world, एक hierarchy where I explore the themes of belonging, rebellion, Oh. identity, and there's an external war raging on. तो वो आप वो कर सकते हैं. And the barred window is the only link to the outside world and the inside because of the curfew and everything happening. So that is how it came into being, which evolved over time, yes. बट या इट्स ब्यूटिफुल. मुझे तो थीम्स बड़े मज़े की लग रही हैं जो आपने बताई कि आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग एंड यू नो मज़े की साउंड कर रही है. आई वुड लव टू रीड इट. अच्छा, सो अभी हम थीम्स की हमने बात की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक फॉर एग्जांपल हाउ डू यू थिंक दीज थीम्स दे स्पीक टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यंग पीपल जो कि पाकिस्तान में बड़े हो रहे हैं, जो बाहर बड़े हो रहे हैं. अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि लाइक यू नो पाकिस्तान में भी बड़े होते हैं जो बच्चे हैं, जो बाहर भी होते हैं आधे गोरे. हाँ, तो यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट योर सन, वो बताएं. तो मेरा बेटा जो है वो अक्सर बिकॉज हिम एंड आई आर लाइक फ्रेंड्स, तो वो मुझे वो मेरे साथ जोक्स करता रहता है, was this invented in your time? Like यार तुम क्या savage समझते हो मुझे obviously. तो जिस तरीके से when we game together मुझे कहता how did you ever clear your math exam? Like यार अभी brain dead है, उस वक्त किया था. तो my son मुझे कहता होता है कि when you're going out in public in Pakistan, या even when you're representing yourself on social media या internationally, why don't you dress up like बहुत chic तरीके से in his mind जो हम कहते हैं ना like boss women, which I sometimes I can मतलब a person should be flexible enough to switch. Yeah, I do both. Yes. Like you know I enjoy doing both. Likewise. तो मैं उसको यही कहती हूँ कि because I am Pakistani, no matter where I go, I will be Pakistani because that is where I've been with the good and the bad. Yeah. That is where I belong. Yeah. I want to represent Pakistan in a way internationally where people can understand क्योंकि recently मैंने बहुत ज़्यादा bias और वो experience देखे हैं, not with me but otherwise Pakistanis के साथ. तो I want to represent Pakistan in a way कि international और मतलब लोग ये कर सकें कि पाकिस्तान में काफ़ी talent and awareness and education है. So it has a lot to offer and people here are so talented, especially humor. हम लोग सबका coping mechanism जो humor है कुछ होता है, memes and so classy, इतने मजे के memes. तो we're so good at it. तो yes. अच्छा, तो आपके मतलब coming back to the सवाल, तो ये themes जो है ये कैसे speak, you know, how will they speak to somebody who's young? Who's young? My book is basically written as literary fiction. Oh. But it gravitates more towards coming of age, जिसको young adult भी कहते हैं. अच्छा. Because for some odd reason I was laughing with a friend of mine. मैं उनको कहती हूँ कि I want to be because I've read literary fiction. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो genre. तो I want to be a literary fiction writer, which is how my writing style is. But I somehow always gravitate towards young adults. Okay. Even in my coaching practice, मेरे ज़्यादातर clients surprisingly, not anymore, but surprisingly, are Gen Z. Oh. So I feel like having struggled with identity, especially जब आप एक आपके लिए जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ वो डिसाइडेड होता है. हाँ, उफ. तो आप जब स्ट्रगल करते हो with your identity, where you stand in the world and everything, you're trying to discover yourself, especially when आप एक divergence पे चले जाते हो, where you are an outcast in मतलब even though divorce I feel is no longer a stigma in Pakistan, but it is somehow not a stigma, but I still feel divorced women especially, there is a marginalization. Even agar bad intent se na ho, like I said, you're very strong with undertones of, you know, zara sa mujhe at least is tarah ka feeling hota tha ki I didn't like the word because people would put me on a pedestal where they would either look up at me or they would look down at me, and I didn't like it. And all my life I wanted to belong to mujhe normal chahiye tha. I wanted normal, and when that normal didn't happen, mujhe apne identity और क्या कहते हैं concept of self के साथ ज़रा struggle करना पड़ा, which I think Gen Z and young adults के साथ इसलिए resonate करता है because in a very rapidly changing world where you're constantly trying to keep up to date with what's relevant and trending, yes. So I think
that resonates a lot with young adults. They're discovering themselves. Because जो मेरे ऊपर phase आया of I'll say existential crisis, वो उनके ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है, and they're very driven. Young adults today, they're trying to discover their place, their potential, सब कुछ ambitious बहुत ज़्यादा है. तो I think that is something that ties my work as a coach and as an author with young adults today. ओके तो आपने बहुत ज़्यादा डीप बातें करी हैं और एक के बाद एक कर रहे हैं. तो आई एम जस्ट आई एम इन द प्रोसेसिंग स्टेज के वाओ व्हेन यू वर लाइक यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी पार्ट कि हमें एक मैप हैंड ओवर कर दिया जाता है व्हेन वी आर ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान कि दिस इज़ योर स्टैंडर्ड लाइक एंड यू हैव टू फॉलो इट. तो हमें सेल्फ डिस्कवरी का या अपनी आइडेंटिटी ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता. एग्जैक्टली. एंड मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज जेन एक्स जो थी वो उनके वक्त में दुनिया बहुत स्लो चेंज कर रही थी और हम मिलेनियल्स के ऊपर एकदम पहाड़ पड़ा. एंड मैं अक्सर हंसती होती हूँ कि हम लोग वो नहीं है मुहावरा धोबी के कुत्ता ना घर का ना घर का ना आज का ना उनका. तो हम लोगों को ये आइडेंटिटी और ये चीज़ें इसमें बड़ा टाइम लगा है. बहुत इवॉल्व हुई है. हीलिंग जनरेशनल ट्रॉमा एंड देन क्या कहते हैं सेटिंग अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ एंड पैटर्न्स. तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेपर होने वाला और मेरी तैयारी नहीं है जब मैंने बड़ा होना शुरू किया. Exactly. और मैं ठक पे ठक एग्जाम एंड देयर इज़ सो मच टू अनलर्न एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न कि बाउंड्रीज क्या होती हैं. अच्छा ना बोलना सीखना है. अच्छा हमेशा जो बड़े कह रहे हैं वो ठीक नहीं है. अच्छा हमने ये टॉलरेट नहीं करना. अच्छा हमने इस तरह से ये चीज़ करनी है. अच्छा पोलाइट भी होना है. अच्छा काइंड भी होना है. अच्छा माँ बाप को भी दोबारा से पेरेंट करना है. अच्छा अपने आप को भी दोबारा से पेरेंट करना है. एब्सोल्युटली. ओह तो वाकई मतलब यू आर सो राइट. वी डोंट पॉज एंड थिंक कि व्हाट आर वी डूइंग एंड कितनी फास्ट पेस दुनिया हो गई और कितनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं. एंड टू बी वेरी फेयर हमारे लिए पॉज का टाइम ही नहीं है. मतलब काफ़ी टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय हीलिंग जर्नी आई हैड अ वेरी मतलब आई वाज सो ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी mentor, एक बहुत ज़्यादा inspiring mentor who is who's still my coach and she उनके नीचे मैंने train भी किया coach Franda Graves. She is the chairperson of ICF UAE chapter. तो वो मुझे कहती थी कि why don't you pause and process this. I was like, coach, I don't have the time. मेरे पास responsibilities. I just absolutely have no time to slow down. Everything is happening so quickly around me. ये हो नहीं सकता. Because if I process, initially processing के साथ the first phase जो आता है, I even tell my clients कि initial sessions में you will feel down. Because when you're processing वो सब फिर से resurface करेगा, grief आएगा, सब कुछ आएगा, resentment आएगी, तो आप एक लो मूड उसमें जाते हो. So I was like, coach, I cannot. People have a very different expectation from coaching or therapy sessions. Like when they're coming for coaching and therapy sessions, they want to feel good. Yes. So उनको लगता है मैजिक फिक्स है कोई. तो जब उनको वो नहीं मिलता कि ओके मैं तो लाइक आई केम टू थेरेपी बिकॉज आई वांटेड टू फील बेटर बट आई एम फीलिंग वर्स विद ईच सेशन. सो व्हाट इज गोइंग ऑन. बेसिकली यू आर गेटिंग इन टच विद योर पार्ट्स जो आपने पूरी ज़िंदगी के इकट्ठे किए हुए हैं 30 साल से 40 साल से 25 साल से आपने उनको नहीं टच किया. सो बहुत सारे लोगों के लिए पॉज इसलिए भी मुश्किल होता है कि दे हैव टू देन सिट एंड फेस ऑल दोज फीलिंग्स. द मिरर. And मैं यही शुरू से disclaimer दे देती हूँ. So how did you find your pause? How did I find my pause? Like I said, life cornered me. मतलब I did not intend to pause because जब आप सब कुछ हो रहा होता है and to be very fair, as a young adult मुझे भी self awareness नहीं थी कि हो क्या रहा है. And then when my sister passed away, when the divorce happened, when things around me completely spiraled out of control, मैंने थोड़े से डिसफंक्शनल कोपिंग मैकेनिज्म्स पिकअप कर लिए थे विच अभी तक मैं उनसे स्ट्रगल कर रही हूँ. अवॉइडेंस, ह्यूमर, डिस्ट्रैक्शन एंड स्टफ, कीपिंग माई सेल्फ बिजी ताकि आई डोंट फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज नोबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट. वी नो अ लॉट ऑफ पीपल के दे जो ये आप जिस तरह बता रहे हो कि अजीबोगरीब कोपिंग मैकेनिज्म उनके बनना ठीक है. आप कोप कर रहे हैं, जस्टिफाइड है उस मोमेंट पे. मुझे लगता है कि आप बस सर्वाइव कर रहे हैं कुछ भी करके. बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज एंड देन यू स्लोली आप उनको फिर वो चेंज भी करें. बिकॉज वाइल दे वर रेलेवेंट इन दैट फेज ऑफ लाइफ दे हेल्प यू सर्वाइव
आपका जब नया ट्रांजिशन फेज आता है, स्पेशली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, स्पेशली जब आप या यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, जो मुझे लगता है कि आपके 3 रिलेशनशिप्स आपके सबसे ट्रिगरिंग एंड सबसे आपके मोल्डिंग, यस, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिग्निफिकेंट अदर, विद योर चिल्ड्रन, आपकी वो अनहील्ड पैटर्न्स लाता है. बेहतरीन इंसान जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं बेसिकली वो ये तीन है एग्जैक्टली. तो जो आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स वर help you survive at one point become obsolete आपके अगले उसमें. तो वो अनलर्न करना, वो उसके साथ developing healthy coping mechanisms या patterns या अपने dysfunction को recognize करना, I think is so important and so difficult, because आपको सबसे पहले तो accept करना पड़ता है कि यार I have to take accountability. कोई और नहीं आएगा बाहर से, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा. तो with clients also I tell them कि एक slow and steady process है. ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ठीक हो जाएगा. It's not going to happen. Baggage of years, you know. जैसे आपने ये बताया कि ये रिलेटेबल भी है और ये लेयर्ड है नॉवल. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा मोमेंट था या कोई ऐसा सीन था जो आपको लिखने में बहुत मुश्किल हुई हो, बिकॉज वो आपके प्रोसेस में या वो आपकी चीज़ों में शायद इंटरप्ट कर रहा था. मैंने अभी रिसेंटली एक बात एक्सेप्ट और रियलाइज़ की अपने बारे में. वाइल आई एम एन आर्टिस्ट, वाइल आई एम, मुझे कोचिंग की तरफ, हैविंग बिन थ्रू दिस प्रोसेस माई सेल्फ, मुझे इसकी तरफ आई डू ग्रेविटेट टूवर्ड्स दिस थिंग. आई एम एन एंटरप्रेन्योर. तो मैं आई ऑलवेज डू द मैथ. इन माई बुक मैंने अपने डिसफंक्शन का रच के यूज़ किया. माई ह्यूमर, माई लेयरिंग, मेरी जो फेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी था, सेल्फ शेम था, आई यूज्ड इट. मतलब जो मेरा एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर इसके अंदर है, विच द बुक इज़ नैरेटेड थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लाइक cliched protagonist character, जो antagonistic character, I gave all my good qualities to that character and my bad qualities to the protagonist character. तो yes, I did struggle writing the book. मुझे डर लगता था कि oh my god, what are the people going to say? What if they think I'm telling my story? Which is not true. I am telling the story of the things that I have seen around me. और आप parts और pieces बता रहे हो ना, exactly. And you know, and then also you have to make it relatable. So it's not like one person's story. It's not. Yes, it has parts of me. I matlab, it's my baby. It's your journey. Yes, it has, but it contains parts of people I have witnessed, I have lived with. It has your experiences basically. Experiences, वो एक चीज़ नहीं है. Yes. अच्छा, so now I'm interested about your rewrite program. My rewrite. ठीक है, तो अब आप हमें बताएं कि क्या है ये rewrite program and how does helping others rewrite their stories and you know connect to your own creative and healing process. उससे कैसे आपको, वैसे I do this all the time so I know, but I want you to tell our audience कि उसमें क्या सुकून मिलता है कि जब आप किसी और को रीबिल्ड करते हैं या उनकी रीइन्वेंटिंग स्टोरी में अपना पार्ट प्ले करते हैं. हाउ इज़ इट हीलिंग टू यू? I got into coaching because आप जो अपने struggling time में हो तो you wish कि there had been that person. So I wanted to become that person for people who were going through transitions basically. That is how I got into it. मेरी इसकी तरफ वो इस तरह से हुई. But my rewrite program basically is all about mindset rewiring. तो it is built in इस तरह के एक मॉडल से build मैंने किया है through जो मैंने coaching training में पढ़ा and my life experiences and the जो मुझे लगता है works. And it does because I have seen clients actually grow. तो that's very fulfilling. आपको मतलब आप उनके साथ because it's a partnership जो coaching का process है forward momentum build करने के लिए. तो हम लोग पहले तो अवेयरनेस करते हैं which is हम लोगों ने डिस्कस की एक वो सैड जर्नी आती है, बंदे पे लो वो आता है. फिर अवेयरनेस के बाद हम एक्शन की तरफ आते हैं. नहीं, पहले अग्रीमेंट तो करते हैं कि कोचिंग के what should have happened towards the end of these 3 months का प्रोग्राम है. अच्छा, so you have a 3 months program. Yes. और आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ ये बात होती है कि 3 months के बाद what should have happened to know that कि यार growth हुई, understand वो हुई है. उसके बाद awareness, then action and then accountability. That's very interesting because usually जो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, उसमें कोई outcome promised नहीं होता. Yeah. So this is very interesting that you know you have a system कि अच्छा 3 months के बाद this is what you can expect. And then again मुझे अब जब मेरा business
वाला दिमाग चलने लग गया है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला. मेरा दूसरा जो रीराइट प्रोग्राम है दैट इज रीराइट फॉर बिजनेस, ताकि टू बिल्ड बिजनेस. How to build your यस business. एग्जैक्टली. तो अच्छा, ये आप 3 months वाला स्ट्रक्चर बता रही थी कि Yeah. पहले आपने अवेयरनेस पे काम करते हैं, उसके बाद पहले एग्रीमेंट, अवेयरनेस, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट. Yeah. यू होल्ड द क्लाइंट अकाउंटेबल कि यार जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, एंड ओवर टाइम जब क्लाइंट अवेयरनेस के प्रोसेस से गुजरता है, आई फाइंड दैट देयर गोल ऑल्सो इवॉल्व्स ओवर टाइम. वो Yeah. मल्टी फैसेटेड हो जाता है. Because they want to, they understand कि ये भी है, I have to work on this, and because of this, 3 months उनको भी शायद कभी कभी लगता है कि are not enough, and they see growth, they resign. Yeah. तो वो मुझे एक खुशी मिलती है कि यार Oh, they're coming coming back, they're back. seeing growth, हाँ. and आपको ज़रा अटैचमेंट भी हो जाती है क्लाइंट के साथ कि because you've You've witnessed seen their yes, journey. their growth. हाँ. तो I always tell my clients कि जो चीज़ in theory exist कर रहा है, if you're claiming कि this is what I want to do and I'm going to do, if there is no physical manifestation of that, it does not exist. मतलब वो तुम्हारे दिमाग में अगर है और उसका प्रूफ नहीं है, it just Yeah. is not real. अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग समवेयर कि जब आपने गोल पेपर पे नहीं लिखा ना, तो वो कैसे काम, वो उस पे काम कैसे होगा? उस पर काम कैसे होगा? गोल जो है, it's not going to happen overnight unless आप बहुत ही लकी हो, हाँ. which is very very rare. तो उस गोल का फर्स्ट स्टेप क्या है? You have a plan? Is there a strategy? I work on strategy because I do not, I have struggled with manifestation my entire life. I believe in Actions. action and strategy. So which is how my book also came into being, and how my coaching business and my everything that I जो growth मेरी है is all based on the principle of accountability and strategy. अच्छा, also I want to highlight one thing here. जब लोग जर्नी देखते हैं आप जैसी किसी खातून की या मेरी जैसी किसी खातून की, तो उसमें वो ये देखते हैं कि वाओ, यू नो, दे रियली लाइक द इमेज, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एंटरप्रेन्योर, कॉन्फिडेंट, कोचिंग अदर वुमेन और ये सारी चीज़ें. बट वी हैव आवर ओन जर्नीज. हम लोग जो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कोई हम कहाँ बैठे हुए हैं, बट आई जस्ट वांट टू शेयर दिस लिटिल टिप हियर कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. टुडे, येस्टरडे, यू नो, आई वाज टॉकिंग टू माय कज़न एंड शी वाज टेलिंग मी कि इरम बाजी आपके तो मज़े हैं, लाइक यू नो यू वेंट टू लाहौर, मज़े हैं, yes. आपके तो मज़े हैं, लाइक यू वेंट टू लाहौर एंड यू नो आपका तो सारा ट्रिप पेड होता है और आप तो एक इवेंट पे बस एक बात करनी होती है, एक वीडियो बनानी है. तो द थिंग इज़ कि हमने इन मज़ों के लिए बहुत मेहनत करी है. एंड मैं गंजी स्वैग को बहुत सुनती हूँ, आई डोंट नो इफ़ यू नो हिम. सो ही ऑलवेज सेज दिस कि ये मज़े हमने क्रिएट किए हैं. तो ये मज़े हमने अपने लिए क्रिएट किए हैं और हमने बहुत मेहनत की है. एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग योर करियर, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और जो मेरी आज इनकम है टू योर स्टार्टअप. यू नो, आपने अगर काम शुरू किया है या आप कहीं जॉब कर रही हैं, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको तो एक टॉक के इतने पैसे मिल गए और मैंने तो पूरा महीना काम करके इतने पैसे बनाए. सो आपने बहुत अच्छी बात करी कि यू नो प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन एंड देन एक्शन. मैनिफेस्टेशन ठीक है कि अगर ठीक है आप कर लो, लेकिन मैनिफेस्टेशन के बाद अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर की फ़ायदा उस मैनिफेस्टेशन का? Exactly. कुछ भी नहीं होने वाला उस मैनिफेस्टेशन से. सो अगेन, अभी बिकॉज वीर ऑन दिस टॉपिक, समर, आई वांट टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि अगर कोई लड़की अपना शुरू करना चाहती है, चाहे वो करियर एज एन ऑथर है, चाहे वो करियर एज एन एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो करियर एज अ, तीसरी चीज़ क्या है, एज अ लाइफ कोच है, ठीक है. तो आप तीनों माशाल्लाह इतनी डाइवर्स चीज़ें कर रही हैं आप, तो आपकी क्या, आई एम श्योर अलग अलग ही टिप्स होंगी, बट यू प्लीज़ टेक योर टाइम और ये ज़रा डिटेल में हमें समझाएं कि फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंट हमें एफर्ट करनी है और क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगी, लाइक यू सेड मज़े हैं, बिकॉज रिसेंटली मैंने भी बहुत सुनना शुरू किया, तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम तो भाई मैं ये करी वो करी, और यूर having the time Living of your your best life. life, how dare you? Yeah, you're मतलब वो जो prime years. I will never say कि I am there yet because life is ever evolving. एक तो ये है, and I do not even presume to be the person that I want to be or aspire to be. But ये मज़े जो हैं इनकी बहुत हेवी प्राइस है. हाँ, बहुत पापड़ बेल के मज़े बड़ा. एंड स्पेशली जब आप एक टाइप की सोसाइटी में आते हैं, लाइक आई कम फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर जहाँ पर putting myself out there on social media was a very huge issue. तो So how did you overcome that, Samar? मैं थोड़ा सा I want to know because ये लड़कियाँ जो देख रही हैं और
खासकर ये जो इस तरह के बैरियर्स होते हैं, बिकॉज यूर फ्रॉम फैमिली रिजर्वेशंस हैं, आप पूरी ज़िंदगी एक अलग तरीके से रेज हुई हैं, और अब आपका करियर वांट्स यू टू बी आउट देयर ऑन सोशल मीडिया. ये एक बहुत मुश्किल जर्नी है जो कि अभी तक मेरे से हो नहीं पा रही, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ कंज्यूमर, आई हैव नेवर बिन अ क्रिएटर. अभी आपसे जिस तरीके से मैंने 100 बार पूछा है कि मेरे बाल ठीक है, मेरे बाल ठीक है, मतलब दिस इज अ स्ट्रगल दैट यू गो थ्रू. तो पहले तो डिस्करेजमेंट आपको मिलता था, और you're told कि you're a literary person, don't show yourself. I even considered writing under pseudonym because मैं इतना मेरा त्राह निकला हुआ था. But the thing is कि over time आप ये फैसला करो कि okay, since nobody's coming, आपकी life is tailored to you, and nobody goes to bed in your skin. You do. You know what you need to do. And या तो मेरे पास जो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल डिग्रीज होती मेरे पास नहीं थी. आई वॉज रेज टू बी रिच मैन्स वाइफ, विच डिडंट वर्क. एंड मुझे फिर बिकॉज ये इस चीज़ पे इतना एम्फेसिस था, यू हैव टू लुक नाइस, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन दिस वे, वो बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बन जाता है, which ऑन कैमरा आई स्ट्रगल्ड विद. ट्रॉफी वाइफ तो मतलब which अगर if things had worked out I would have gone happily with, but it didn't, and I'm very happy it did not. एक तो ये है कि आप एक्सटर्नल नॉइज़ को, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन ले लिया है कि यार आई वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ नाउ, तो एक्सटर्नल नॉइज़ को आपने बंद करना है, नो मैटर व्हाट इट सेज. बट देन अगेन आप अकाउंटेबिलिटी लोगे कि यार मैंने जब ये फैसला किया है, इसको फुलफिल करना भी मेरी रिकाउंटेबिलिटी, स्पेशली इफ देयर आर डिपेंडेंट्स इन्वॉल्व. मतलब मज़ा नहीं लेना, सिर्फ एमी वो नहीं करना, यू हैव टू कमिट, इट्स अ डिसीजन. और समटाइम्स लाइक इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप, इवन इन कोचिंग, इवन इन राइटिंग, हमें लगता है कि बिकॉज इनिशियली हम बहुत पम्प्ड होते हैं कि यार हम इंस्पायर्ड, शुरू करने के लिए तो हम हाँ एड्रेनलिन पंप हो रहा होता है. 1/3 of the way it goes away. And it becomes a drudgery, work, responsibility, and there is no guarantee of success. There is no money. There is no end in sight. Risk है बहुत बड़ा. Yes, और आपका self esteem भी, you're always questioning कि यार am I good enough? Can I do this? I've never done something like this in my entire life, being raised like that. तो ये सब कुछ होते हैं. What I would advise to young people, women especially, power through. There is no other way. जिस तरीके से आप जब फिटनेस जर्नी पे अपने जाते हो, the only way you can lift and आपका स्टैमिना बिल्ड होता है by developing that muscle, by doing it over and over and over again. तो इसके अंदर भी ये जो like I asked you initially how you're so comfortable on camera. You said कि I developed it over time, बारी कर करके, by messing up. I made it exist first, then I got better at it. Similarly, in every pursuit, you have to first keep doing it, keep showing up, no matter how you feel, whether you feel uninspired, down, angry, sad, happy, whatever you जो है, आप लाइफ में मूड ड्रिवन नहीं हो सकते. या आप एम्बिशियस हो सकते हैं या आप मूड ड्रिवन हो सकते हैं, ठीक है. एंड इट्स ओके टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू नो टू गिव योर सेल्फ द स्पेस एंड टाइम टू रिकवर इफ़ यू आर बर्निंग आउट या सब कुछ. मैं उसके हक में बिल्कुल हूँ, बट ये नहीं हो सकता कि मेरी ज़िंदगी मूड ड्रिवन है कि आज मेरा दिल चाह रहा है तो मैंने बैठ के लिखना है, और अगर आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं पॉडकास्ट कैंसिल कर दूँ. या आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट. इट ऑल स्टेम्स डाउन टू वन थिंग मुझे जो लगता है, लाइक सी, अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, बच्चे हों, यू मेक श्योर यू शो अप फॉर देम. उनके एग्जाम्स हैं, यू शो अप. उनको सुबह स्कूल के लिए भेजना, यू शो अप. पेरेंट बीमार है, यू शो अप. यू struggle with showing up for yourself. So you need to take yourself seriously and love yourself in a way, even if nobody else does love you उस तरीके से. You have to be that person जो अपने, अच्छा, even if you don't love yourself, you're not there, you just take a chance on yourself कि यार I have to take a chance on myself. या तो मैंने इस रियलिटी जो कि अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए, मुझे खुश नहीं करी, या मुझे एक हमारे, बिकॉज ओवर टाइम हमारे ब्रेन इतने फेमिलियर हो जाते हैं विद पेन एंड वो कि staying in an uncomfortable reality, staying in a difficult reality becomes more comfortable than stepping out, than going through that discomfort of expanding yourself. तो ये अपने लिए फैसला लेना है कि यार am I going to take a chance on myself, whether I feel I'm competent enough, या do I like myself enough. चांस मैंने अपने ऊपर लेना है या नहीं. That is how you show up daily, and that is how you grow.
तो दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एट हाँ, लीस्ट. जैसे अभी आप एग्जांपल दे रही थी ना कि यू आस्क्ड मी हाउ आर यू कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो नहीं, आप पहले दिन से डे 1 से कंफर्टेबल नहीं होते. इट्स अ जर्नी एंड कॉन्फिडेंस इज़ अ जर्नी. और कभी भी कोई भी आपको अपने कहते हैं ना, हर चीज़ में जो माहिर इंसान मिलता है वो हर चीज़ पे काम करके हर चीज़ पे माहिर हुआ है. कोई भी ब्लेस्ड नहीं होता, कोई भी, आई एम श्योर पीपल आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ्स, बट अगर आप किसी को ऑन टॉप ऑफ देयर गेम देखते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कितने डिसिप्लिन है, वो कितने कंसिस्टेंट है, वो कितनी मेहनत करते हैं, उनका कितना हार्ड वर्क है. ये बहुत आसान है कि आपने किसी की 4 साल की, 5 साल की, 8 साल की जर्नी को देखकर कहा कि यार वाओ, ये तो you know, she's just living her best life, but you don't know कि when she started 5 years back she went through the process and the process is painful. जैसे कि अभी समर आप बता रही हैं कि बहुत आसान है अपने कंफर्ट जोन में, अपने फेमिलियर जोन में रहना और अपनी वही सफरिंग्स को रिपीट होते हुए देखना और अपने आप को विक्टिम बना लेना कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती. हाँ, वो आसान इसने ये ऑप्शन किया, है. मेरा तो ये नहीं है, वो हाँ, नहीं है. अकाउंटेबिलिटी जो आप बार बार कहते हो ना, वो बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी ज़िंदगी है और अगर मैं इसके फैसले नहीं कर पा रही तो मैं क्यों नहीं कर पा रही, और मैं क्या करूं कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपनी ज़िंदगी के ये फैसले करना शुरू हो जाऊं. सो आज की आई थिंक एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत एक वो हो सकती है टर्निंग पॉइंट, अगर आप उसको उस तरह से सुने, उस तरह से समझें, उस तरह से देखें. अच्छा, तो अब आप ये बताएं, छुट्टी देने से पहले हम आपसे पूछेंगे, इफ़ समवन इज़ लिसनिंग टुडे एंड यू नो दे फील कॉर्नर्ड बाय लाइफ, जैसे कि आपने यूज़ किया था व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू यू, द वे यू हैव फेल्ट इन योर लाइफ, तो आप उनसे क्या कहेंगी अबाउट कि जहाँ वो एक एज पर हैं, जहाँ वो रिज़ाइन कर सकते हैं या वो री इन्वेंट कर सकते हैं. लेकिन ऑब्वियसली ज़िंदगी में ज़्यादा आसान है गिव अप कर देना, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वो एक आसान रास्ता है कि हाय मैं बेचारी और मेरे पास तो ना रिसोर्सेज हैं, ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना कुछ है. एंड आई डू एम्पथाइज विद दोज वुमेन. मैं क्या इस तरह रही हूँ, शायद वो थोड़ा सा बोल्ड होकर ऐसा लगे क्योंकि कितनी इंसेंसिटिव औरत है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं बिल्कुल ख्याल मोहब्बत से कह रही हूँ, बट जैसे कि आपने बार बार कहा है कि आपने अपने आप को बाहर निकालना, यू हैव टू पुल आउट योर सेल्फ, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा. तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि रेजिग्नेशन क्योंकि आसान है और री इन्वेंटिंग बहुत मुश्किल है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, एक नई मजदूरी शुरू करनी एक नई ज़िंदगी के लिए, तो वो कैसे चुनें अगर वो चुनना चाहती भी हैं तो? अगर वो चुनना चाहती है, if what is there works for people, good. You don't need to scratch what doesn't, I mean you don't need to itch what doesn't, क्या कहते हैं ना, you don't need to scratch what isn't itching, ठीक है? Yes. तो but personally for me it wasn't working out. मैं बहुत miserable होती जा रही थी. I was like यार, I can't be a good parent this way, I don't want to stay this way, and मेरा somehow मैं कभी कभी इसको as a strength as a weakness दोनों देखती हूँ. मेरा spirit इस तरीके से बना हुआ ही नहीं है कि to just give up. तो what I would suggest कि अगर आप बहुत cornered feel करते हो, use whatever you have, even अगर आपको उस वक्त गुस्सा आ रहा है, use that गुस्सा for जो initial inspiration या initial वो drive है, use whatever is available to you. जो इर्द गिर्द है, like I had no fancy degree, I had nothing. और जो इवन मैंने MA BA की डिग्रीज की हैं, आई वुड नॉट, वो मैंने उनके अंदर एक बात, मैंने गाने भी लिखे हैं बिकॉज नोबडी चेक्स, वो मैंने गाने भी लिखे हैं, मैंने वो रैम्बलिंग किए हैं और उसके बाद फर्स्ट डिविजन्स लिए हैं. तो वो तो सिर्फ मेरा ये था एम था कि यार 16 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाए ताकि आई कैन अप्लाई टू थिंग्स. तो जो आपके पास अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो बिजनेस के लिए भी आई फील इज, बिकॉज अगर आपको ट्रॉमा है, यूज दैट ट्रॉमा. अगर आपको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, यूज दैट. व्हाटएवर यू हैव, गुस्सा आ रहा है, रिजेंटमेंट है, यूज इट टू बिल्ड. बिकॉज वो एंगर हमेशा नहीं रहता, वो ओवर टाइम एक पर्सनालिटी का वो बन जाता है. Whatever you're experiencing, if it is not given a proper channel of मतलब going through momentum, अगर it stays in your body as illness, as जो हम कहते हैं ना कि काफ़ी औरतें, हम लोग who are struggling, they gain weight, they let themselves go and everything because it's stored in their body, वो trauma. तो अगर trauma को channel अच्छा नहीं मिल रहा, आप तो heal कर सकते हो, yes you do heal, but मैंने क्या किया कि मैंने उसको इस तरह का चैनल दिया जिससे 2 birds with 1 stone shoot हो जाए. I used whatever was available to me to get myself out of there.
बिकॉज बहुत अच्छी बात की आपने, बिकॉज इफ़ यू विल वेट फॉर एन आइडियल सिचुएशन It's never कि going to मुझे come. सपोर्ट भी मिल जाए, मेरे पास फाइनेंसेस भी हो जाए, फिर मैं ये काम करूँगी, वो तो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा. सो यू स्टार्ट विद वॉट एवर यू हैव. और जैसे कि उन्होंने इमोशंस पे बताया कि अपना जो रेज है, अपना जो हर्ट है, उसको अच्छे वे में चैनलाइज करें Yeah. और अपने पैशन की तरफ उसको चैनलाइज करें, तो फिर अल्लाह ताला भी रास्ते बनाता है, एक के बाद एक कोई ना कोई हल निकल आता है. बट जस्ट एंड अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट समथिंग कि यू जिस भी डायरेक्शन में, ये मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ, बट फोकस एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको यूज़ करें ना अगर सही से. Yeah. और जिस भी डायरेक्शन में फोकस करते हैं, जैसे कोलैटरल डैमेज होता है वैसे कोलैटरल ब्यूटी भी होती है. Yes. जब देयर इज़ डैमेज तो देयर इज़ होप एंड देयर इज़ कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा भी खुलता है. Yeah. जैसे हम कहते हैं ना पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसी तरह पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ भी होती है. व्हेन एवर देयर इज ट्रॉमा यू कैन लुक एट इट इन अ वे कि दिस इज़ माई चांस टू ग्रो, दिस इज़ माई चांस टू स्टार्ट This is my launch pad. या लाइक री इन्वेंटिंग, जो आप लाइक री राइटिंग माई स्टोरी, दिस इज़ माई Rewriting my चांस. story, exactly. So use it smartly. Okay, so mashallah Samar, you're doing a lot and you have done a lot mashallah, but आपके future plans क्या हैं? Like एक novel तो होगी, अब आगे के plan हैं? अभी इमीडिएटली जो फ्यूचर प्लान है, जो जैसे मैं दुबई जाऊंगी ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगा, दैट इज़ माई लॉन्च. जो एंड लॉन्च लिंक्ड इवेंट्स जो होते हैं, लाइक आई हैव टू स्पीक एट द एमिरेट्स लिटरेरी फेस्टिवल एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो पाकिस्तान की, जो आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद लिबर्टी बुक्स हियर इन पाकिस्तान एज वेल, तो उसके लिंक जो वो होंगे. And I am also deciding to launch my third coaching program, which is literary focused, like toward जो हम लोग agreement की बात की थी, उसके end of 3 months 25,000 words of your manuscript would be done. तो अगर client आगे लेके जाना चाहता है, that's up to them. But because as an author I've realized कि writing a book is not just art, it's math also. There's an architecture involved to writing a book. You need a system. You don't need to be a good writer. It helps, but you need to be a good storyteller, and you need to understand the math of it. So my practice is all math and art mixed, combined. That is, even though oil and water, but that is how it is. And I am also writing my second book, which is very personal to me, because it is focused on the very simple yet complex sibling bond. Because I have lost a sister. And बंदा सोचता है कि चलो ग्रीफ होगा, हम सैड फील करेंगे, हम डाउन फील करेंगे, वो हो जाएगा, मिस करेंगे. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ग्रीफ. कि ग्रीफ क्या चीज़ है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट यूर क्वेश्चनिंग कि है ये क्या है, ये क्या है. योर पेरेंट्स आर फॉलोइंग अपार्ट, बेरीवमेंट में आपके सामने. एंड स्पेशली माई सिस्टर पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट, विच इज़ वेरी, मतलब आई थिंक द बिगेस्ट आजमाइश अल्लाह की तरफ से. तो वो एक तो ये भी था कि जब आपका सिबलिंग आपके साथ बड़ा होता है, आप उस बात को फॉर ग्रांटेड लेते हो कि ये तो अनोइंग इंसान सारी ज़िंदगी रहेगा ना, इसने कहाँ जाना है. दिस इज सो ट्रू. लाइक इस तरह का ख्याल भी नहीं आता आपको. लाइक माँ बाप के लिए आ जाएगा, एंड सब पीपल हु आर ओल्ड इन द फैमिली, दादा दादी के लिए ब्रेकअप पार्टनर नेवर थिंक लाइक दैट अबाउट योर बहन भाई जाएगा. तो जब वो चला जाता है ना, आप शॉक में होते हो, ये हुआ क्या है, ये क्या है, ये क्या है. What I basically wanted to write about is जो हम remaining 4 siblings थे, how we dealt with it. तो वो sibling bond I think is the most underrated and the most beautiful bond. I want to focus on that. So that's beautiful. And you're getting teary while talking about it. That is something that is hard to do. Yeah. So अभी मेरी बहुत, like she's a very close friend of mine, and her sister passed away a few years back. Randomly she'll mention her. And when she's talking about her, she'll get teary. तो मुझे लाइक जैसे ना एज एन आउटसाइडर या एज अ बाहर का पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि उसका ग्रीफ अभी भी बहुत फ्रेश है, हालांकि इट्स बिन सो मेनी ईयर्स. आई थिंक. एंड हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे. मुझे लगता है पर्सनली इस तरह के जो जिस चीज़ के लिए आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते कि यार ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आई थिंक देयर आर नॉट इनफ years in your lifetime to process that. Because abhi bhi sometimes I dream of my sister and it's like कुछ हुआ ही नहीं है. I keep, मतलब मैं उसे ये कहती हूँ कि Manu, I have so much to tell you. मतलब it's like nothing has changed. So I think
ये प्रोसेस नहीं हो सकता. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस इन दिस. And as a society, we're always in a, we have this expectation to rush this grief. चाहे वो किसी का भी loss है. Yeah. We're not very patient with people who are processing the loss. Because I work as a coach also and a therapist, I've seen husbands, rushing their wives के ठीक है अब हो गई है अब्बा की डेथ, तो मतलब just move on. तो हमारे अंदर tolerance बहुत कम है. So we need to understand कि जो हमारे for granted लिए हुए रिश्ते हैं और जब वो कुछ भी like something unfortunate happens, so we need to be very patient with people who are dealing with it, because it is a very difficult. आई थिंक वो ग्रीफ प्रोसेस वो जो होता है ना कि वो नेचुरल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ वो शुरू ही इतने लेट होते हैं बिकॉज आप शुरू में शॉक में होते हो कि हुआ क्या है. एंड इट्स नॉट जस्ट योर ओन पर्सनल लॉस. आप अपने पेरेंट मतलब फॉर मी लाइक ये एक होलिस्टिक लॉस है, एक फैमिली का लॉस है, एंड इट्स आपके सिबलिंग्स का लॉस है. आप उनको देख रहे होते हो कि यार ये कैसे कोप कर रहे हैं. माई सिबलिंग्स स्ट्रगल्ड, माई पेरेंट्स स्ट्रगल्ड. तो वेरी माई पेरेंट्स स्ट्रगल्ड बहुत ज़्यादा. एंड लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन बीइंग इन देयर पोजिशन. तो वो आप देख रहे होते हो और आप कहते हो कि ये क्या है. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. आई वॉज एंड बीइंग आई वॉज द ओल्डेस्ट चाइल्ड. So being in that position, I felt it was my responsibility to take everything under my wing. ये भी करना है, वो भी करना है. I have to be there for my parents, be there. I was going through a divorce. In the midst of it, being there for my kids, deal with my divorce. That's a lot. Do it. मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं. हम लोग जो KP की बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, तो बाहर से भी गेस्ट रिसीव हो रहे हैं. एवरीबडी इज़ कमिंग. ये सब कुछ यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है. यू जस्ट परफॉर्मिंग. तो लाइक वो जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स हैं मुझे आई फील लाइक मेरे कानों में रिंगिंग थी. मुझे चीज़ें याद हैं, इवेंट्स नहीं याद. मतलब सारा वो a sense of numbness. No, I was completely numb. तो it was something, I think this is something you can never be prepared for. तो yeah. तो चलिए जी, अब हम करते हैं रैपिड फायर. उसके बाद हम इनको छुट्टी देंगे. बहुत बिजी हैं ये. एंड आई एम फ्लाइंग टुमारो, शी हैज़ अ फ्लाइट ऑन सैटरडे. और हमने बहुत अर्जेंट बेसिस पे इसको किया है बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू इट विद हर. So rapid fire round. A book you wish you would have written. Very controversial book, but I wish I had written Lolita. Oh, one word that defines your current chapter in life. Transition. Oh, okay. Coffee or chai while writing? Chai. Chai, me too. A quote or mantra you live by? Quote भी हो सकती है. Mantra. मेरा self-created quote है शायद. The most powerful and the best language is silence. Oh, हाँ, मैं सीख रही हूँ आजकल ये. Silence? Yeah. The first emotion you felt when you held your book in your hands. The first book in your hand. The first emotion, since मेरा processing थोड़ा slow है, I always laugh कि I'm a slow learner, but once I learn. तो nothing. वैसे ही बड़ा raw बताया आपने. Yeah, I was numb. But yeah, कि मुझे like when I see you कि I think I can give you a word. कि वो trophy wife से I think you made your own trophy. I made mine. Oh, that's such a nice way to put it. Thank you. it मुझे अगर मैं जैसे आपको देखूँ तो looks like I'm holding my trophy. Yeah, I don't want to be a trophy Very wife anymore. nice words. So thank you so much, Samar Shabbir, for being here. It was a very insightful conversation. और मुझे बहुत मज़ा आया. जैसे कि हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि और कुछ मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, मैं ये बहुत कमाती हूँ कि मेरी नॉलेज में इजाफा होता है, हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखती है. एंड कोशिश यही होती है हम इसी तरह के गेस्ट लाएं कि आप लोग सीखते रहें, आप लोग इंस्पायर्ड रहें, आप लोग मोटिवेटेड रहें. समर शब्बीर के हम सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे. अगर आप कोचिंग के हवाले से, इनके प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं इनसे, यू कैन गेट इन टच इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हर बुक के कब लॉन्च हो रही है एंड एवरीथिंग. यू कैन गेट इन टच विद हर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.